Hey guys, how are you all doing? I hope you are all doing great. I know you can't see me, but this is a revision of Arbitration and Conciliation Act. I'm not in my location where I have the studio, but I need to revise this for you. So we will be reading Arbitration and Conciliation Act 1996. Sir, I have summarized this act of 55 pages in just 7 pages. We will go through all the provisions and we will finish it very quickly. Sir, what is Arbitration and Conciliation Act? Broadly, this is an alternate dispute resolution mechanism, right? So because the high courts and supreme courts and courts of sessions are very, power very occupied, they don't have more space. We wanted to somehow bring the cases in control of whom? In control of some arbitrators or some conciliators. These are some people who, some judges or some other intelligent people who can probably resolve some issues without the interference of the court. So the broader thing that we are going to talk about in this chapter is the alternate dispute resolution mechanism. Before you talk about anything, you should always read the objective of this act. This objective is to consolidate and amend the law relating to three things. One, domestic arbitration, whatever arbitrations happens within India. International commercial arbitration. International commercial arbitration is something in which one of the party is outsider. Third, enforcement of foreign arbitral awards. Enforcement of foreign arbitral awards, as in if any award has been given in some other country, its enforcement. For example, if you remember, the future consumer and Amazon case was happening in a Singapore arbitration with a Singapore arbitrator, right? Now that Singapore arbitrator, when it passes an order, it will be enforceable in India also, it will be enforceable in Singapore also, and everywhere in the world. Okay. And also to define the law relating to conciliation and for matters connected therewith and incidental thereto. So sir, तीन चीजें arbitration की बात करते हैं. One thing is about conciliation. So summary of case laws. This is summary of case laws, but this is not precisely the summary of case laws. You will see one more case laws in the later part of the summary notes also. But you will have to understand. You don't need to remember them all. I have anyway filtered some of them in my summary notes, and whatever I have filtered, जो भी नाम आपको जम रहे हैं सर वो याद करने की कोशिश करो. होता है तो ठीक है, वरना it's fine. Summary of case law, sir. Salim, एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तमिलनाडु का एक बार एसोसिएशन था सर, उनका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस लॉ था. All courts shall direct parties to alternate dispute resolution methods like arbitration, conciliation, judicial settlement. It is, sir, it is that they are trying to promote the alternative dispute resolution mechanism, because that is how the burden on the courts will come down. So, Salim Advocate Bar Association said that in against Union of India said that everyone will guide them towards arbitration, conciliation. AK Balaji versus Government of India and others. Sir, I just want to stop for a moment and tell you that this revision will completely be a replacement of your last day revision, because I don't want you to go through this topics again. And after this revision will be a little detailed. We will not be very time sensitive, but at the same time, we will be very fast because we are talking about the day before your exam. Okay, so please be very careful. Don't think that I'm going a little too slow. You have to read along with me from your material also. So, or if it is slow, you can definitely watch it at 2x. Listen, sir. AK Balaji versus Government of India क्या बोलते हैं? AK Balaji versus Government of India says that foreign lawyers cannot be debarred to come to India and conduct arbitration proceedings with respect to disputes arising out of a contract relating to international commercial arbitration. Sir, if there is an international commercial arbitration, if there is a case between future consumer and Amazon is बाहर का party, and if you decide that the seat of the arbitrator, what did I say? The seat of the arbitrator, मतलब the jurisdiction of the arbitration will be India, then in that case, one of the arbitrator can also come from foreign. Not necessary that everyone should be from India. Foreign lawyers cannot be debarred to come to India. This was held in AK Balaji versus Government of India. सारी लड़ाई Government of India ही कर रहा है, sir. Third, SPP versus Patel Engineering, very, very, very important provision, sir. SPP versus Patel Engineering helps you in defining the judicial authority. Judicial authority is per se not defined in the Act. But judicial authority would certainly include courts defined under Section 2E of the Act, and would also include other courts and may even include special tribunal like a consumer forum. But sir, judicial authority is a very wider term and it is difficult to narrow it down to certain words. The structure of this Act, sir, there will be more case laws. We will read that in detail. Okay. Structure of the Act. The structure of the Act is that Part 2, arbitration. The structure of the Act is arbitration. If you have to arbitration. We have to read about arbitration in detail. Then Part 2, enforcement of certain foreign awards. Part 3, conciliation, and Part 4, supplementary provision. Alternate dispute resolution mechanism. What is the alternate dispute resolution mechanism, sir? Exactly, sir. Suno, alternate method of dispute resolution, as the word itself is clear. For a resolution of a dispute, there has to be alternate methods. The major methods are arbitration, conciliation, mediation, judicial settlement, and lok adalat. We will read all of them except for lok adalat. Sir, what is Part 1?
Arbitration in detail first. Section 2 defines definitions, certain definitions. Arbitration means an arbitration whether or not administered by permanent arbitral institution. याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. Arbitral tribunal क्या होता है सर? Arbitral tribunal means the sole arbitrator or the panel of arbitration. Sir, आपको to give you gist of what arbitration is, if suppose future consumer and Amazon have a fight, they don't necessarily need to go to High Court or Supreme Court or Court of Session. What they can do is they can mutually appoint arbitrators, and those arbitrators will be well educated people who are very capable of understanding the case, and they will just proceed with giving their award. Sir, giving their award, they'll pass their order, which is called as award, and that award will be bound. Both the parties will be bound by such award. So, sir, who are arbitral tribunal? Arbitral tribunal means if you are appointing one person as your arbitrator, that is called a sole arbitrator, or if more than one person, it is called as panel of arbitrators, and all of them are together called as arbitral tribunal. So you will have to constitute an arbitral tribunal. Future consumer and Amazon, you together will have to constitute an arbitral tribunal. The arbitral tribunal will listen to all your cases and then give an award. That award will include interim award. अगर आपने बीच में कोई award दे दिया, what is interim award? We'll read that also. Sir, what is internal commercial arbitration? Sir, as I told you, future consumer and Amazon का case में one of the parties is an international party, right? So in that case, the arbitration will become international commercial arbitration. But one important point to also notice that commerce should be involved. Like it should be commercial. Personal, sir, अगर इंडिया के किसी बंदे ने यूएस की किसी बंदी से मैरिज किया था, तो उनके बीच में जो डिस्प्यूट होगा ना, वो इनके पास नहीं जाएगा, because only commercial arbitrations are covered here. International commercial arbitration means an arbitration relating to dispute arising out of legal relationship considered as commercial under law in India, and where at least one of the parties is individual who is a national or resident in a country other than India, is a body corporate which is incorporated in a country other than India, or association of board or body of individual whose central management or control is exercised in a country other than India or government of foreign country. मतलब सर बाहर का इंडिविजुअल है, बाहर का बॉडी कॉर्पोरेट है, बाहर का एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या बाहर का गवर्नमेंट है, तो सर वो इंटरनेशनल कमर्शियल अरेंजमेंट arbitration माना जाएगा. What are the basic features of an arbitration, sir? You will need to by heart these points. The first important feature is arbitration agreement, which we will read in detail about what are the key features of an arbitration agreement. Then there should be an arbitrator. Arbitrator is also known as arbitral tribunal and is similar to judge of a court. जैसे कोर्ट में जज होता है, यहाँ पे arbitral होता है, arbitral ट्राइब्यूनल होता है या आर्बिट्रेटर होता है. सीट ऑफ आर्बिट्रेशन मतलब क्या सर? किधर बैठेगा? नहीं सर, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन मतलब इफ देयर इज अ केस बिटवीन फ्यूचर कंज्यूमर एंड Amazon, व्हिच जुरिसडिक्शन विल हैव, कौन से जुरिसडिक्शन का लॉ आप पढ़ोगे. फॉर एग्जांपल, फ्यूचर कंज्यूमर इज इंडिया, Amazon इज आउटसाइड इंडिया, तो आप इंडिया का कोर्ट का इंडिया का लॉ पढ़ोगे कि आउटसाइड इंडिया का लॉ पढ़ोगे. अगर आप इंडिया का लॉ पढ़ रहे हो तो सर सीट ऑफ आर्बिट्रेशन विल बी इंडिया. अगर आप बाहर का लॉ पढ़ रहे हो तो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन विल बी आउटसाइड इंडिया. The legal system which would supervise the arbitration, whether Indian courts or outside courts. कौन सुपरवाइज कर रहा है सर? कौन से कोर्ट सुपरवाइज कर रहे हैं? वो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन होगा. पार्टी ऑटोनॉमी एंड प्रोसीजर, दिस इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ आर्बिट्रेशन सर, दैट there will be party autonomy. मतलब sir, you will have the flexibility to select the kind of procedure that you want to follow, and the arbitrators also. So enormous flexibility to choose the type and kind of procedure. Finality of outcome, sir, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन में अपील होता, कोर्ट ऑफ सेशन का ऑर्डर आता है, फिर अपील जाता है हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, अपील जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास. तो आर्बिट्रेशन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा. देयर आर ओनली लिमिटेड ग्राउंड्स वेयरइन एन अपील कैन बी फाइल्ड, बट अदरवाइज द आउटकम ऑफ द अवार्ड ऑफ द आर्बिट्रेटर इज फाइनल. Finality of outcome, usually there is no appeal against the arbitral award. कॉन्फिडेंशियलिटी सर, पब्लिक में होता है. जो कोर्ट के केसेस होते हैं ना, खुला होता है पब्लिक में, वहां मीडिया जाके बैठती है, लोग जाके बैठते हैं. लेकिन जो आर्बिट्रेशन होता है ना, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है और किसी को राइट नहीं होता है वो चीजें बाहर रिलीज करने की. Arbitral award means, sir, it is the decision by the arbitrator, whatever the arbitrator decides, and enforcement of the arbitral award. It is easily enforceable in foreign countries under the international treaty. Many of the countries have entered into international treaties based on which arbitration is a very well accepted method of dispute resolution. And once an arbitrator has passed an award, it is enforceable through in any country because of international treaty. Difference between litigation and arbitration. Litigation and arbitration में क्या फर्क है सर? देखो, litigation takes place in the court, but this arbitration place is chosen by parties. वो सर conference hall भी book कर सकते हैं. Judge, in this case, the judge is assigned by the court, but arbitrators are selected by the parties themselves. Future consumer and Amazon together, they can decide which one will be the arbitrator. Procedure to be followed. Sir, litigation के case में procedure is fixed by Code of Civil Procedure 1908, but arbitration में there is adequate flexibility to choose what will be the process based on which you will commit an award. Confidentiality, sir, open to public होता है litigation, but arbitration is very confidential.
Appeal, subject to numerous appeals but can be challenged on limited grounds. Appeal, sir, litigation is subject to numerous appeals but arbitration only on limited grounds. Enforcement of judgment, difficult in foreign countries, much easier and is governed by the international treaties. मतलब सर अगर हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर होगा ना तो आप बाहर जाकर के यूएस के कोर्ट में नहीं उसको एनफोर्स करवा पाओगे, लेकिन सर आर्बिट्रेशन अगर है ना तो वो कहीं भी आप एनफोर्स करवा लोगे. Sir, who are the concerned authorities under this act? One is judicial authority. Judicial authority is not defined in the act. It is a very wider concept. Every court will be a judicial authority, but every judicial authority would not be a court. It means, sir, judicial authority will include courts, but other than court, other forums also. जैसे कि हमने SPP Patel versus SPP versus क्या केस था वो? SPP versus Patel engineering का केस पढ़ा था कि judicial authority is a wider concept. It will definitely include courts, but it will also include those special tribunal like a consumer forum. Second, what is court, sir? Court basically means वही सर अपना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. कोर्ट परफॉर्म सुपरवाइजरी फंक्शन. देखो सर, आर्बिट्रेटर अपना काम कर रहा है, लेकिन आर्बिट्रेटर लीगल काम कर रहा है कि नहीं वो कौन देखेगा सर? कोर्ट सुपरवाइज करेगा, सच एज ग्रांटिंग इंटरिम मेजर्स, चैलेंजिंग ऑन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एटसेट्रा. फॉर ICA, कोर्ट मीन्स हाई कोर्ट. For other arbitrators, court means district court, and high court exercising original jurisdiction. Sir, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनी अदर डेजिग्नेटेड पर्सनल इंस्टीट्यूशन, ये यहाँ पे सेपरेटली डिफाइन क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे इनको पावर दे रहे हैं क्या अपॉइंट करने का, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का. कब वो आपको समझेगा? सुप्रीम कोर्ट टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, हाई कोर्ट टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर इन केस ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन. डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के केस में हाई कोर्ट के पास चले जाना अगर तुमको समझ नहीं आ रहा है कौन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे. और अगर फ्यूचर कंज्यूमर और अमेजन जैसा इंटरनेशनल कमर्शियल अरेंजमेंट का केस है, आर्बिट्रेशन का केस है, तो आप चले जाना सुप्रीम कोर्ट के पास. सुप्रीम कोर्ट आपको अपॉइंट करके देगा आर्बिट्रेटर कौन होगा. Sir, what is an arbitration agreement? One of the key features that we read of arbitration, basic features of arbitration that we read was arbitration agreement, right? What is arbitration agreement in detail? Sir, arbitration agreement means an agreement by the parties. Agreement by the parties to submit all arbitration or certain disputes which have arisen or which may arise between in a defined legal relationship, whether contractual or not. Sir, आप एक arbitration agreement मतलब आप agreement में enter कर रहे हो कि you will basically submit all your disputes to an arbitrator. Arbitration agreement may be in the form of arbitration clause or which may be in writing or in the form of a separate agreement. मतलब क्या सर, आपका एक डॉक्यूमेंट बना हुआ था, एक सेकेंड, आपका एक डॉक्यूमेंट बना हुआ था, उस डॉक्यूमेंट में आपने एक क्लॉज डाल दिया, वो आर्बिट्रेशन क्लॉज हो सकता है, या फिर आपका एक डॉक्यूमेंट था उसमें आपने एक क्लॉज का रेफरेंस डाला है जो दूसरी जगह आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की बात करता है. दोनों इज बोथ ऑफ देम आर वैलिड. So arbitration agreement can be form of arbitration clause or in the contract or in the form of separate agreement. It shall be in writing, that is contained in documents signed by the parties or exchange of letters etc including electronic mode. Sir, it should be in writing. मतलब क्या सर, अगर एक सेलर एक परचेजर को इनवॉइस रेज करता है और इनवॉइस में नीचे लिख देता है कि all the disputes arising on account of this invoice will be subjected to arbitration, then in that case it is a valid form. It is in writing. Sir, the reference in the contract to a document containing an arbitration clause constitutes an AA if the contract is in writing and in the reference is such made to arbitration clause part of the contract. Sir, अगर आप अपने contract में किसी और document का reference दे रहे हो जिस reference में arbitration clause included है और sir वो reference बहुत clear है, there is no second thoughts, there are no doubts about such reference, then in that case that reference is a valid reference and it will be considered as an arbitration agreement. Sir, there are two types of arbitration agreement. As I said, arbitration clause, submission agreement. What is arbitration clause, sir? You are entering into an agreement that whatever disputes will happen in future, we will take it to the arbitrator. What is submission agreement, sir? You are entering into an agreement after the dispute has arisen that we will take this dispute to the arbitration agreement. What is arbitration clause, sir? Clause contained within the principal contract. The parties undertake to submit disputes that may arise in future. Sir, आगे जो आएगा उसको submit करेंगे. लेकिन sir, submission agreement मतलब agreement to refer disputes that already exist. अभी जो हो रखा है उसको arbitration में, such an agreement is entered into after the disputes have been arranged. So sir, दो तरह का होता है, एक तो before एक after depending on the dispute. Arbitration clause है कि submission agreement है. Sir, what are the general principles of the arbitration agreement? You will have to read this. General principle क्या है सर? arbitration agreement का चार principle है सर. पहला enforceable, अब आपको पता है वो कहीं पे भी enforceable होता है under the law and this is a valid contract. Consent is addendum. You will have to understand, sir, if future consumer and Amazon wants to go for arbitration now, both the parties have to give consent. Only जैसे सर कोर्ट पे तो अगर आपके और मेरे बीच में लड़ाई हुई तो मैं आपको कोर्ट में लेके जा सकता हूँ, लेकिन अगर आपके और मेरे बीच में लड़ाई हुई ना तो मैं आपको आर्बिट्रेटर के पास नहीं लेके जा सकता, क्योंकि आर्बिट्रेटर के पास जाने के लिए दोनों का कंसेंसस होना बहुत जरूरी है, कंसेंट होना बहुत जरूरी है. तो सर कंसेंसस addendum, parties have to clearly give their consent to arbitration. If words used are unambiguous, no consensus addendum. तो आपने अगर बोला कि कॉन्ट्रैक्ट में किया जब डिस्प्यूट होगा तब देखेंगे कि आर्बिट्रेटर के पास जाना है कि नहीं, that means you have not clearly given your consent and that would be not a no consensus addendum.
ouster of jurisdiction, sir, what does that mean? One party agree to arbitrate the matter, neither of them can, once party agree to arbitrate, neither of them can litigate the matter. मतलब क्या सर, अगर फ्यूचर कंज्यूमर और अमेजन ने डिसाइड कर लिया आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं, बाद में फ्यूचर कंज्यूमर को लगा अरे आर्बिट्रेटर के पास हार जाएंगे हम, एक काम करता हूँ छोड़ देता हूँ और मैं चला जाता हूँ लिटिगेशन में, नहीं सर आप नहीं जा सकते, एक बार आपने अपना कंसेंट दे दिया. Doctrine of separability, very important. A arbitration agreement is independent to the main contract. Arbitration agreement would not be rendered invalid merely because of the principal contract was invalid. सर सुनो, अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज है, अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है क्या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी इनवैलिड हो जाता है? नहीं सर, बिकॉज आर्बिट्रेशन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी यहाँ पे इम्प्लाई हो जाता है, यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है, उसको और डिटेल में हम थोड़ा नीचे पढ़ेंगे. सर what are the requirements of a valid arbitration agreement? सर मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ, देखो, it has to be in writing. कंसेंसस चाहिए होता है सर, डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैंने आपके मर्डर करने की बात की और मर्डर करने के लिए हमने एक अग्रीमेंट एंटर किया किसी और के साथ, और वो अग्रीमेंट अगर हमारा काम नहीं किया तो उसको लेकर के हम डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे क्या? नहीं. देयर शुड बी अ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप, दैट इज ओनली डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम लीगल रिलेशनशिप कैन बी सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन. The award will be final and binding, and यूज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड सच एज आर्बिट्रेशन शैल नॉट बी नेसेसरी. मतलब सर जरूरी नहीं है कि आप आर्बिट्रेशन वर्ड लिख रहे हो, आप ऐसा लिख सकते हो वी आर गोइंग टू एनी थर्ड पार्टी फॉर रेजोल्यूशन. इट कुड बी सिमिलर टू आर्बिट्रेशन बट यू डिड नॉट राइट द वर्ड आर्बिट्रेशन स्पेसिफिकली. देयर मस्ट बी प्रेजेंट और फ्यूचर एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट. आर्बिट्रेबिलिटी भी होना चाहिए सर, मतलब जो केस आप लेके जा रहे हो तो वो आर्बिट्रेबल होना चाहिए. मतलब क्या सर, इंडिया में आज की डेट पे कुछ ऐसे केसेस है जो आर्बिट्रेटर के पास रिजॉल्व नहीं हो सकते, आपके हाई कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा सर. जैसे कि मर्डर हो गया, कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो गया. This cannot go to arbitrability. This has to go to court only. The dispute must lawfully by arbitration. मतलब सर आर्बिट्रेबल होना चाहिए. There are certain disputes that the law retains exclusively for the court and the same cannot be submitted for arbitration, such as criminal offenses. सिग्नेचर होना चाहिए सर. आर्बिट्रेशन ओनली रिक्वायर्ड व्हेन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज कंटेन्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट. सिग्नेचर होना चाहिए सर. ये आपके रिक्वायरमेंट्स है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की. क्या क्या बोलोगे सर? राइटिंग होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, लीगल रिलेशन होना चाहिए, वर्ड्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए सर. डिस्प्यूट होने की जरूरत है या तो अभी या फिर फ्यूचर में. आर्बिट्रेबिलिटी होना चाहिए सर, सिग्नेचर होना चाहिए. आर्बिट्रेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. सर क्या आप एक मिनट रुक करके इसका एक शॉर्टकट बना करके लिख लेंगे? WC लीगल रिलेशनशिप, RL फाइनल एंड बाइंडिंग, F स्पेसिफिक वर्ड्स, लेट मी से वर्ड्स, और फिर डिस्प्यूट हो गया, फिर आर्बिट्रेबिलिटी हो गया, फिर सिग्नेचर हो गया. यार ये तो बहुत गंदा सा है, इससे कैसे बनेगा? सर ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड से प्लीज आप एक मिनट एक्स्ट्रा स्पेंड करके बना लीजिए और मेरे को भी बता दीजिए अगर आपको कुछ समझा तो, और अपन उसको ग्रुप में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे. सर टर्म्स ऑफ आर्बिट्रेशन, व्हाट इज द टर्म्स ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट? टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मतलब क्या सर? अगर आपका आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट कब होगा? अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड करते हैं, अगर फ्यूचर कंज्यूमर और अमेजन दोनों डिसाइड करते हैं नहीं भैया आर्बिट्रेशन से अपना नहीं होगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा सर. टर्मिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, सर अगर आपका प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है इधर बाय नोवेशन और बाय डिस्चार्ज, देन इन दैट केस योर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज आल्सो टर्मिनेटेड. बट सर अभी तो आपने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी बोला था ना कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी विल बी एप्लीकेबल. सर अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है ना तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट सर्वाइव्स बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी. लेकिन अगर टर्मिनेट कर रहे हो डिस्चार्ज या नोवेशन के थ्रू तो आपका टर्मिनेट हो जाएगा आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. डेथ ऑफ द पार्टीज, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज नॉट डिस्चार्ज बाय डेथ ऑफ द पार्टीज, इट शैल बी एनफोर्सेबल बाय एजेंट और लॉ. तो भाई ये पॉइंट में लिखने की जरूरत ही क्या थी? इंस्टीट्यूट को पूछो. लेकिन सर इंस्टीट्यूट ने एक जगह टर्मिनेशन की बात की, अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है ना तो उससे टर्मिनेशन नहीं हो जाता सर. आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कंटिन्यू करेगा आपके फेवर में या अगेंस्ट में. ऑपरेशन ऑफ लॉ, दिस एक्सटिंग्विशेस राइट ऑफ द एक्शन, दिस एक्सटिंग्विशेस राइट ऑफ द एक्शन. सर मतलब अगर लॉ की वजह से अगर कुछ ऐसा होता है कि आपका अग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है तो आपका राइट ऑफ एक्शन टर्मिनेट हो जाता है, आप फिर उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते. दीज आर द 4 केसेस, 4 पॉइंट्स दैट वी टॉक अबाउट टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट. ओके सर. Now what is arbitral tribunal? What is arbitral tribunal or arbitrator? Arbitrator or arbitral tribunal is that I'll call it as AT. Okay, AT. सर AT वो ज्ञानी इंसान है जो आपका केस सुनेगा और अपना अवार्ड देगा. सर ET is that person who has to be neutral and fair to all the parties involved in the arbitration. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी किसी जान पहचान वालों का आपने आर्बिट्रेटर बना लिया, जैसे कि फ्यूचर कंज्यूमर के केस में जो सिंगापुर का आर्बिट्रेशन बेंच है, that will be neutral to both of them. Who can be arbitral tribunal sir? Any person capable of contracting, any person who is capable of contracting. और इन्होंने कोई कंडीशन ही नहीं दिया, इंडियन, फॉरेन, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट नहीं सर. अपॉइंटमेंट, party autonomy means freedom to choose the procedure, venue, seat or the arbitrators. Number of arbitrators, how many numbers sir? Generally law says that it should not be even. Okay, it can be odd, any numbers as the party may decide, but generally it should not be an even number. Sir, if you have more than one arbitrator, what is the problem? You will face difficulty in coordinating with the timings. But if you have less than one arbitrator, if you have only,
if you have more than one arbitrator, what are the benefits? The benefits are that lot many minds, mutual discussion, great interaction, and then you will have a quality of the award, greater expertise. Sir, in the Narayana Prasad Lohia versus Nikunj Kumar Lohia, you'll have to remember this. Yaad this. Narayana Kumar Lohia versus Nikunj Kumar Lohia, it was held that even number of arbitrators are allowed, assuming that they will come to consensus rather than disagreement. But this practically doesn't happen. मतलब सर इन्होंने लोहिया के केस में ये लिख दिया था कि भैया इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर भी अलाउड है, ये मान लो ना, वो कंसेंसस में आएंगे, डिसएग्रीमेंट क्यों आएंगे, जरूरी क्यों है ये सोचना कि डिसएग्री ही करेंगे. व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट? सर, देयर इज अ वेरी कॉमन प्रोसीजर. It can be as simple as a toss of the coin. What are the common procedures? Parties jointly appoint. Each party will appoint one and two arbitrators, and the two arbitrators would appoint the presiding arbitrator. Appointment can be made by unrelated person, institute. Example, president of ICI or FICCI. सर, आप प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई के पास चले गए और बोले हमारे लिए प्लीज एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो, तो प्रेसिडेंट भी कर सकता है, या फिर आप लोग आपस में मिलकर भी कर सकते हो. सर, अगर जॉइंटली एक सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है, अगर ए और बी दोनों को मिलकर जॉइंटली एक सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है तो ए सर लिस्ट भेजेगा बी को बहुत सारे आर्बिट्रेटर्स का कि ये लोग पॉसिबल नाम है मेरी तरफ से, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो. अगर बी सिलेक्ट कर लेता है तो वो बन जाएगा आर्बिट्रेटर सर, लेकिन अगर बी सिलेक्ट नहीं करता है तो फिर बी अपना लिस्ट भेजेगा ए को और बोलेगा इनमें से कोई सिलेक्ट कर ले. सर, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कोई सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो जाता है, यही लिखा है यहाँ पे. When the parties are unable to decide, approach designated authorities. सर, जो ऊपर जुडिशियल अथॉरिटीज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नीचे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिखा था ना, वहां पे ये लिखा था कि अगर आप आपस में डिसाइड नहीं कर पाते कौन आर्बिट्रेटर बनेगा तो आ जाना मेरे पास और मैं बता दूंगा. किसके पास आ जाना? सर, अगर आपका डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो हाई कोर्ट के पास चले जाना, अगर आपका इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है तो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाना. सर, what are the requirements of an arbitral tribunal? The requirements are that could be of any nationality. हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. Should be capable of contracting and there should be lack of biasness. सर, बिल्कुल इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना चाहिए. रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था सर, वहां पे उन्होंने बोला कि टेस्ट ऑफ बायस क्या होता है. टेस्ट ऑफ बायस बहुत सिंपल होता है सर. अगर एक पर्सन जिसके पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर वो सोचता कि भाई बायस है तो तू बायस्ड है, बहुत बहुत बेसिक टेस्ट है सर. Test of bias is whether a reasonable person in possession of relevant information would have thought that like the bias was likely. मतलब क्या सर, अगर फ्यूचर कंज्यूमर और अमेजोन के बीच में केस हो रहा है और आपने केस को लेकर के गए मेरे पास, शुभम के पास, जो एक आर्बिट्रेटर है. अब शुभम सर फ्यूचर कंज्यूमर का पहले एम्प्लॉय रह चुका है और बहुत अच्छा टर्म्स है उसके फ्यूचर कंज्यूमर के सारे लोगों के साथ. सो इन दैट केस सर, इन दैट केस शुभम इज डेफिनेटली बायस्ड. और ये इन्फॉर्मेशन आप किसी भी प्रूडेंट इंसान को दोगे, रीजनेबल पर्सन को दोगे ना, तो वो समझ जाएगा बायस्ड है, तो वो टेस्ट ऑफ बायस हो जाता है सर. सेक्शन 12 ग्राउंड ऑफ चैलेंज, वेरी इंपॉर्टेंट. सर, आप जब भी किसी आर्बिट्रेटर के पास जाते हो ना, कहते हो कि भाई मेरा केस लड़ लो, हमारे लिए केस डिसाइड कर लो. वेयर अ पर्सन इज अप्रोच्ड फॉर हिज पॉसिबल अपॉइंटमेंट एज एन आर्बिट्रेटर, ही शैल डिस्क्लोज इन राइटिंग टू थिंग्स: circumstances such as existence of any past or present relationship with or interest of the parties, or the subject matter in the dispute which is likely going to give rise to justifiable doubt about his independence of impartiality, or circumstances which is likely to affect his ability to devote sufficient time to the arbitration और his inability to complete the entire arbitration within 12 months. सर, यहाँ पे indirectly इन्होंने लिखा है कि 12 months के अंदर arbitration खत्म हो जाना चाहिए. If you are approaching any arbitrator with his possible appointment, then he will have to give two disclosure of any of the two things. One, if there are any circumstances because of which he doesn't remain unbiased. Second, if there are any circumstances because of which he will not be able to complete within the 12 months within 12 months. What are the duties and liabilities of arbitrators, sir? He will have to continue the arbitration proceedings without delay. He will have to be impartial. Confidentiality maintain करना पड़ेगा. Deliberation मतलब सर, the arbitrator will mutually discuss आपस में and then they will deliberately pass an order as award. ऐसा नहीं कि randomly कोई भी award decide कर रहे हैं. Avoid unilateral communication with one of the parties. ऐसा नहीं सर, सिंगापुर arbitration जो है ऐसा नहीं, अमेजोन के साथ बात कर रहे हैं, फ्यूचर कंज्यूमर के साथ बात नहीं कर रहे हैं. Avoid unilateral communications. Ensure all documents and communications received from one party is communicated to the other party. Ensure that the award or all other decision comply with legal requirement, and ensure that he or she himself at all the times comply with legal requirement associated with the arbitral tribunal. Sir, what are the duties? Duties are basically sir वही point आ रहे हैं, वापस से delay नहीं करना है, impartial होना है, confidentiality maintain करना है, deliberation, unilateral communication नहीं करना है, मतलब एक जने का communication दूसरे जने को transfer करना है, और सर award pass करना है, ensure that comply with legal requirements. सर, 1 मिनट लगेगा, इसका भी कुछ बना लेते हैं. देखो सर, विदाउट डिले नहीं होना चाहिए, impartial हो गए, कॉन्फिडेंशियल और डेलिब्रेशन मेंटेन करोगे. यूनिलैटरल कम्युनिकेशन से रिलेटेड 2 पॉइंट. एक तो यूनिलैटरल कम्युनिकेशन मत करना और एक दूसरे का डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर करना. अवार्ड जो है इट शुड बी कंप्लाई विद ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स, और ही और शी हिमसेल्फ should at all the times comply with legal requirement. तो मैं लीगल रिक्वायरमेंट का भी 2 पॉइंट कर देता हूँ. C2 L2. C2 क्या है सर? कम्युनिकेशन के 2 पॉइंट्स. L2 क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट्स के 2 पॉइंट्स. अवार्ड भी लीगल रिक्वायरमेंट का अप्लाई करना चाहिए, वो खुद भी लीगल रिक्वायरमेंट का अप्लाई करना चाहिए. तो सर ये क्या आ गया? D, CID. तो D भी D2 भी कर दो सर. CID
CID C2L2। सर ऐसा कुछ प्लीज बना लो, ठीक है, कीवर्ड सर CID D C2L2, इसका कुछ बना लो फनी सा, मैं कोशिश करूंगा, आप मेरे को बना के प्लीज बता दो तो मैं एक ग्रुप पे सबको शेयर कर दूंगा। टर्मिनेशन रिमूवल और सब्स्टिट्यूशन, टर्मिनेशन रिमूवल और सब्स्टिट्यूशन, या फिर मैं आप खुद भी नहीं, आप नहीं भी बनाओगे तो मैं खुद भी बना के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बट अभी मैं रिविजन में नहीं बनाना चाहता। सर टर्मिनेशन रिमूवल एंड सब्स्टिट्यूशन, सर देयर आर 4 इंस्टेंसेस इन विच द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जिसको आपने अपॉइंट किया है ना, उसको टर्मिनेट, रिमूव या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कौन सा इंस्टेंसेस सर? अगर आर्बिट्रेटर खुद छोड़ देता है, मेरे को करने का ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, वैसा आर्बिट्रेटर अगर खुद छोड़ देता है, या फिर ऑल द पार्टीज अग्री दैट आर्बिट्रेटर शुड बी रिमूव्ड थ्रू यूनानिमस डिसीजन 100% ऑफ द पीपल अग्रीड दैट दे शुड बी रिमूव्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब क्या सर? अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज अनेबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस और फॉर अदर रीजंस फेल्स टू एक्ट विदाउट अनड्यू डिले, सर वो अननेसेसरी डिले कर रहा है प्रोसीडिंग्स में। या फिर सर arbitration process ends in either of the following ways, अगर फाइनल अवार्ड हो गया है, या फिर फेलियर टू मेक अवार्ड विद इन 12 मंथ्स, या फिर पार्टीज डिसाइड टू नो लॉन्गर कंटिन्यू विद द आर्बिट्रेशन। अगर इन तीनों में से किसी भी तरीके से अगर आपका आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाते हैं, कैसे सर? अगर फाइनल अवार्ड पास हो गया है, अगर 12 मंथ्स के अंदर कोई अवार्ड पास नहीं हुआ है, या फिर अगर पार्टीज ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि आर्बिट्रेशन करना ही नहीं है, तो सर आपका तब भी आपका आर्बिट्रेटर डिस्चार्ज हो जाता है, कोर्ट डिसाइड्स टू रिमूव आर्बिट्रेटर। तो 4 केसेस सर जहां पे आर्बिट्रेटर को आप निकाल सकते हो, या आर्बिट्रेटर को खुद निकल सकता है। पहला वॉलंटरीली निकल गया, दूसरा सारे पार्टीज ने मिल करके उसको निकाल दिया, तीसरा सर अगर वो अपना काम खुद नहीं कर पा रहा है, या फिर आर्बिट्रेशन का प्रोसेस ही खत्म हो गया। कैसे प्रोसेस खत्म हो गया? फाइनल अवार्ड हो गया, 12 महीने खत्म हो गए, अवार्ड नहीं हुआ है, और सर अगर आप नो लॉन्गर आर्बिट्रेशन कंटिन्यू करना चाहते हो, या फिर कोर्ट निकाल देता है सर आपको। सर यहाँ पे सेकंड और फोर्थ पॉइंट सिमिलर है कि ऑल पार्टीज म्यूचुअली रिमूव और कोर्ट रिमूव्स। थर्ड क्या है सर? ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब आपका अवार्ड ही डिक्लेयर हो गया तो आपका आर्बिट्रेटर क्या करेगा? तो उस तरीके से टर्मिनेशन हो जाएगा। चैलेंज अगेंस्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सर अगर आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अगर सर फ्यूचर कंज्यूमर और अमेजन ने मिलकर के सिंगापुर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया, अब बाद में सर फ्यूचर कंज्यूमर को लग रहा है यार ये सिंगापुर वाले तो हमारे अगेंस्ट चीटिंग कर रहे हैं, वो तो बायस्ड हो रखे हैं फ्यूचर कंज्यूमर की तरफ, तो सर सबसे पहले फ्यूचर कंज्यूमर क्या करेगा? वो जाएगा किसके पास? वो सिंगापुर आर्बिट्रेटर के पास, और उनको बोलेगा सर हमको लग रहा है आप बायस्ड हो। सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपना बायसनेस, अनबायसनेस प्रूव करेगा। अगर वो नहीं प्रूव कर पाता ना, तो फिर फ्यूचर कंज्यूमर जो है वो ऊपर कोर्ट में जाएगा। फर्स्ट चैलेंज मस्ट बी रेज्ड बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इटसेल्फ, जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसके सामने रेज करो। ओनली आफ्टर दैट चैलेंज कैन बी रेज्ड बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड हाई कोर्ट फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सर पर आपने तो बोला था कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है ना। सर सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है बस, उसके अलावा वो अपील नहीं सुनता है सीधा। अगर आपको आर्बिट्रेटर से रिलेटेड अपील फाइल करनी है, अगर आपको चैलेंज करना है उसके बायसनेस का, तो आप जाओगे किसके पास सर? पहले आप जाओगे उस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास खुद, और वो अगर नहीं हो पाता है तो आप जाओगे हाई कोर्ट के पास इन केस ऑफ इंटरनेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन केस ऑफ डोमेस्टिक। सर हमने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट पढ़ा, फिर हमने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पढ़ा, अब आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है? अवार्ड, अवार्ड मतलब सर ऑर्डर। Award is a conclusive determination as to question, issue, or disputes that were put forward before ET. Arbitral award is similar to judgment of the court. It represents a resolution between the dispute. Sir, challenge against the award. आप कब award को challenge कर सकते हो? Only a party to AA can challenge the arbitral award. मतलब सर अगर future consumer और Amazon के बीच में केस चल रहा है, तो Reliance जाकर के केस नहीं कर सकता award के अगेंस्ट, सिर्फ future consumer या फिर आर्बिट्रेटर ही कर सकते हैं। अथॉरिटी बिफोर विच द अवार्ड कैन बी चैलेंज्ड फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल अरेंजमेंट ओनली हाई कोर्ट। सर पर यहाँ पे तो आपने सिर्फ डोमेस्टिक कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला था ना सर। यहाँ पे क्या चैलेंज हो रहा था? आर्बिट्रेटर एटी का बायसनेस। और यहाँ पे क्या चैलेंज हो रहा है सर? यहाँ पे चैलेंज हो रहा है इनका अवार्ड। तो सर अवार्ड अगर चैलेंज करना है ना, तो आप हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जा सकते हो इन केस ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, बट इंटरनेशनल में सिर्फ हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। Challenge has to be made within 3 months of the receipt of the order. Maximum extension 30 days. अगर 3 महीने के अंदर नहीं कर पाए for some sufficient cause, then 30 days. No automatic stay on the enforcement of the award. Party will have to स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट। मतलब क्या सर? अगर फ्यूचर कंज्यूमर और इसके अमेजन के केस में ऑर्डर ये पास हुआ कि फ्यूचर कंज्यूमर कैन इशू शेयर्स टू रिलायंस, इन दैट केस सर वो रिलायंस को शेयर इशू करने निकल जाएगा, भले ही अमेजन ऊपर अपील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फ्यूचर कंज्यूमर के अमेजन रिलायंस को शेयर्स इशू करने से रोकना है ना, तो अमेजन को स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भैया स्टे ऑर्डर लगाओ इस अवार्ड के अगेंस्ट। सर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अवार्ड? यू ऑलरेडी नो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अवार्ड: फाइनल अवार्ड, इंटरिम अवार्ड, सेटलमेंट अवार्ड, एडिशनल अवार्ड। फाइनल अवार्ड मतलब क्या सर? सारे डिस्प्यूट्स जो भी थे वो रिजॉल्व हो गए, सारा ऑर्डर पास हो गए। अवार्ड that is made as per law and finally adjudicates on the issue submitted to the arbitration. What are interim awards, sir? Interim award means there can be 2 types of interim award which remains in force till final award is rendered. It is final as regard to the matter it deals with. सर इंटरिम अवार्ड मतलब या तो आपने, आपके पास 10 डिस्प्यूट्स आए थे, उसमें से एक डिस्प्यूट को लेके आपने परमानेंटली सॉल्व कर दिया, बाकी 9 डिस्प्यूट कंटिन्यू हो रहे, या फिर सर आपने
which remains in force till it is final, वो वही है सर, एक dispute को लेके finally resolve कर दिया, and sir the latter is referred as interim award because when it is rendered while there were still other pending issues. सर इसको interim award क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर अभी आपने पूरा conclusive award नहीं दिया है, और सर interim award ये भी हो सकता है कि आपने एक award finalize किया है लेकिन जब तक आप final award नहीं देते तब तक के लिए interim award active है. तो सर interim award can again be of two types. settlement award क्या होता है सर, settlement award मतलब AT can assist parties in arriving at a settlement. सर अगर फ्यूचर कंज्यूमर और Amazon के बीच में केस है तो सिंगापुर क्या करेगा, वो दोनों को बोलेगा भाई तुम सेटल कर लो कि भाई रिलायंस को थोड़ा कम शेयर्स इशू कर लो या जो भी है वो इशू कर, जो भी है वो देख लो. सर जैसे ही सेटलमेंट पे अराइव हो जाएंगे ना उसको लेकर के आर्बिट्रल अवार्ड में कन्वर्ट कर देगा. लेकिन सर वो एक तरह से फाइनल अवार्ड ही है, लेकिन बिकॉज इट वाज बिकॉज ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज इट इज आल्सो कॉल्ड अ सेटलमेंट अवार्ड. एडिशनल अवार्ड मतलब क्या सर, अगर आपके पास 10 डिस्प्यूट्स आए थे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, उसमें से उसने 9 डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दिए और वो एक डिस्प्यूट गलती से छूट गया, उसको पता नहीं था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज अ फाइनल अवार्ड बिकॉज अकॉर्डिंग टू इट ऑल द मैटर्स वर रिजॉल्व्ड. बट जो एक डिस्प्यूट छूट गया था वो बाद में किसी ने हाईलाइट किया पार्टीज ने, तो सर उस हाईलाइट करने के बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एडिशनल अवार्ड पास करेगा. एंड सर ओनली पार्टीज कैन रिक्वेस्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू मेक एडिशनल अवार्ड कवरिंग दिस इश्यूज. सच रिक्वेस्ट इज टू बी मेड विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द अवार्ड. सर 30 days के अंदर आपको वो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा. रिक्वायरमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इसमें मैं सिर्फ 30 days हाईलाइट कर देता हूँ. सर रिक्वायरमेंट ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड का क्या होना चाहिए सर, आर्बिट्रल अवार्ड मस्ट बी बाय अ डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी. सर यूनानिमस आर्बिट्रेशन का रिजल्ट नहीं चाहिए. अगर 3 लोग हैं तो मेजॉरिटी, अगर 2 लोग एक अवार्ड के लिए मान जाते हैं तो वो अवार्ड पास हो जाएगा. सर कंप्लीट कंसर्निंग ऑल द इश्यूज दैट आर सबमिटेड फॉर एडजुडिकेशन, मतलब सर फाइनल अवार्ड होना चाहिए. इट शुड बी इन राइटिंग एंड शुड बी साइंड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन. इट शुड बी डेटेड. सर साइंड में देख लो, साइंड सिग्नेचर ये लोग बोल रहे हैं मेजॉरिटी का सिग्नेचर चाहिए हमको, सबका सिग्नेचर नहीं चाहिए क्योंकि अवार्ड पास भी हो रहा है डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी के थ्रू. सर इट शुड बी रीजन कि जो भी हम ऑर्डर पास कर रहे हैं वो हम क्यों पास कर रहे हैं. अनलेस पार्टीज जो है ना वो बोलते हैं कि भैया हमको अवार्ड रीजन की जरूरत नहीं है, अनलेस दैट हैपेंस यू हैव टू मेक इट अ रीजन. It should not be vague, it should be very clear, it should not be unclear, it should not seem like a recommendation, it should not seem like a recommendation, and it should be capable of being performed that is realistic, and it should not be illegal, that is against public policy. ठीक है सर, पब्लिक पॉलिसी मतलब लीगल अवार्ड होना चाहिए सर, राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए. डिलीवरी. An award that is signed should be ready for delivery and should be delivered to all the parties concerned. Sir, can you please do me a favor? Please also make a ये of summary of this. Majority, complete, writing, reasoned, should not be vague, should be realistic and should not be illegal. ठीक है सर. डिलीवरी, जो अवार्ड दैट इज साइन शुड बी रेडी टू बी डिलीवर्ड एंड शुड बी डिलीवर्ड टू द पार्टीज कंसर्न. अगर आप अवार्ड पास करके अपने जेब में रख लोगे तो कैसे पता चलेगा. ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग एन अवार्ड. सर ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन ऑर्डर अवार्ड बी चैलेंज. सर एज आई टोल्ड यू अवार्ड्स कैन जनरली नॉट बी चैलेंज बट इट कैन बी चैलेंज ऑफ बायस अगेंस्ट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फर्स्ट स्टेज बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. जो अपन ने बोला कि बायस का चैलेंज हो सकता है लेकिन पहले एक बार आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास वो लेके चले जाओ. ओवरस्टेपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल गेट्स टू फर्स्ट डिसाइड्स ऑन दिस चैलेंज बाय द पार्टी. अगेन सर अगर आपको लगता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की ये जुरिस्डिक्शन नहीं थी, उन्होंने ओवरस्टेप किया, मतलब क्या सर, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास आप 4 डिस्प्यूट लेके गए, 4 डिस्प्यूट तो उन्होंने आंसर नहीं किया, उसके अलावा एक और डिस्प्यूट उन्होंने नया निकाल दिया, तो दैट कुड बी कॉल्ड एज ओवरस्टेपिंग द जुरिस्डिक्शन. दिस इज प्रोबेबली नॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द आर्बिट्रेटर. इन दैट केस टेक दैट challenge against the arbitrator first and then take it to someone else. Sir, what are the specific grounds for reviewing an award? There are 7 grounds. वो grounds in which ये वो 5 ग्राउंड्स हैं जहां पे सर इज स्पेसिफिकली रेज्ड बाय पार्टीज, और ये 2 ग्राउंड्स हैं जहां पे कोर्ट अपने खुद के मोशन पे वो केस ले सकता है. सर इफ पार्टी इज अंडर सम इनकैपेसिटी, सर इन्होंने ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है लॉ में, इन्होंने लॉ में सिर्फ ये लिख दिया है पार्टी इज अंडर सम इनकैपेसिटी देन यू कैन गो एंड अपील सच एज माइनर. If there was an invalid arbitration agreement, if the party is not given a proper notice about the appointment of arbitrator or arbitral proceedings, if the award deals with disputes not submitted to arbitration and the arbitral tribunal or procedure was not in accordance with necessary requirement under the law. सर अगर ये 5 में से कोई भी चीज होती है, मतलब सर अगर आप इनकैपेसिटेट हो रखे हो कोई भी पार्टीज, अगर सर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इनवैलिड था, अगर नोटिस नहीं मिला टाइम पे, अगर डिस्प्यूट जो है वो सबमिट ही नहीं किया था आपने, उसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं, या फिर सर अगर लॉ के अकॉर्डेंस में नहीं है तो आप चले जाओ अपील लेकर के किसके पास, कोर्ट के पास. और सर कोर्ट कौन से केसेस में अपने ओन मोशन पे लुक कर सकते हैं, इफ इट वाज नॉट आर्बिट्रेबल. आर्बिट्रेबिलिटी मतलब सर अगर क्रिमिनल ऑफेंस है, मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, तो वो सारी चीजें आर्बिट्रेबल नहीं होती. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट इज नॉट केपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन और दैट द आर्बिट्रेशन अवार्ड इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया. अगर सर उसको लगता है आर्बिट्रेबिलिटी नहीं है या पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया में नहीं है तो सर वो आपके अवार्ड को ओन मोशन पे वो पिक कर सकता है. सर consequences of challenging an award.
व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चैलेंजिंग एन अवार्ड? वही सर जो नॉर्मली होता है, सेट असाइड हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा या मॉडिफाई हो जाएगा, या रेमिट बैक टू ए। सर मतलब वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास वापस भेज देगा, सॉरी क्या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास वापस भेज देगा सर कि आप उसको फिर से रिव्यू कर लो, कुछ डिफेक्ट रेक्टिफाई कर लो, नहीं तो हम सेट असाइड कर देंगे। सेट असाइड, कंफर्म, मॉडिफाई और रेमिट बैक टू द ए। एनफोर्समेंट ऑफ द अवार्ड सर, where time for challenging award has expired or when such application was rejected, the award can be enforced under CCB in such manner as if it were a decree of court। जैसे कि कोर्ट की डिग्री है सर, वैसे आप उसको उसके अगेंस्ट इन्फोर्स करवा सकते हो, हाई कोर्ट पे जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पे भी जा सकते हो। यहाँ पे खत्म हुआ सर आर्बिट्रेशन। अब पढ़ते हैं सर कंसिलिएशन क्या होता है। कंसिलिएशन मतलब क्या सर? देखो, आर्बिट्रेटर में एक आउटसाइड पार्टी था, उसके पास आप गए, अपना केस रखे और उन्होंने आपको हेल्प किया, उन्होंने आपका अवार्ड आपके लिए अवार्ड पास किया। लेकिन सर कंसिलिएशन में क्या होता है, दो जनों के बीच में डिस्प्यूट है और जो कंसिलिएटर होता है ना, वो क्या करते हैं, आपको रेजोल्यूशंस देता है एंड इट हेल्प्स यू कम एट अ कंक्लूजन कि भैया तुम दोनों यू सेटल कर लो। मतलब सर ये बहुत ज्यादा ज्ञानी इंसान है। अगर मेरे और मेरे दोस्त के बीच में कोई लड़ाई हुई है तो कभी कभी क्या होता है, मेरे पापा या मेरे दोस्त के पापा हम लोगों का केस रिजॉल्व कर देते, राइट? ये वही है सर कंसिलिएटर। A process of getting parties to come to an agreement about a common problem or dispute through confidential discussion and dialogue। आपस में बात करो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और जो भी अपन होगा एक सेटलमेंट पे अराइव कर लेंगे। What are the characteristics sir? It is voluntary, that is all the parties have to agree to the dispute, जैसा कि arbitration का भी था। इट इज नॉन एडवर्सरियल, मतलब सर पार्टीज डू नॉट हैव टू बी एडवर्सरीज। मतलब क्या सर, अगर केस होता है ना कोई भी, अगर आर्बिट्रेशन में जाता है तो फ्यूचर कंज्यूमर और अमेजॉन, तो एक जना जीतेगा एक जना हारेगा सर, मतलब विन लॉस सिचुएशन होता है। लेकिन यहाँ पे जब कंसिलिएशन करते हैं ना, हम विन विन सिचुएशन के लिए फोकस करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना कि सामने वाले का नुकसान ही होना चाहिए। पार्टीज डू नॉट हैव टू बिहेव एज एडवर्सरीज, दुश्मनों की तरह बिहेव मत करना। Instead of focusing on win lose, the attempt is to find a solution to the problem that best suits all the parties। असिस्टेड प्रोसीजर सर मतलब क्या, क्योंकि कंसिलिएटर होता है तो सर वो असिस्ट करता है पार्टीज को इन अराइविंग एट अ सोल्यूशन। फाइनलिटी ऑफ द सेटलमेंट, सर जो आउटकम हो गया ना वो फाइनल और बाइंडिंग होगा। इन कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे भी मेंटेन होती है। सर इंडिया में कंसिलिएशन होता है क्या? बिल्कुल होता है। एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट कैन बी कंसिलिएटेड। कितने कंसिलिएटर्स होंगे सर? मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। यहाँ पे ऑड इवन नहीं बोला है, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंसिलिएटर कौन करेगा सर? अपॉइंट करेंगे पार्टीज खुद। Sir, it must be ensured that independent and impartial conciliators। Procedure for conciliation क्या होगा सर? Both parties are required to submit their statement in writing, supply docs or evidence। Sir, अगर मेरे दोस्त ने क्लास में मेरा नोट्स चोरी कर लिया है, मेरे को मेरा नोट्स गुम गया और मेरे को लगता है मेरे दोस्त ने चोरी किया है, तो मैं उसको लेके आ जाऊंगा अपने पापा के पास। पापा मेरे को बुलाएंगे और बोलेंगे बेटा बता क्या सीन है तेरा, तेरे को क्या लगता है। फिर वो मेरे दोस्त को बुलाएंगे और बोलेंगे बेटा बता क्या सीन है तेरा, तेरे को क्या लगता है। दोनों की बात सुनेंगे, फिर दोनों को एक दूसरे की बात बताएंगे और बोलेंगे भाई तुम लोग डिसाइड कर लो। बोथ द पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर स्टेटमेंट इन राइटिंग, सप्लाई डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस। Conciliator then provides a copy of the statement docs of one party to the other, and conciliator is then required to encourage and assist parties to engage in discussion based on the information to arrive at the settlement। Bar on judicial proceedings and arbitral proceedings। Sir, सुनो, when conciliation proceedings are ongoing, parties cannot start arbitration proceedings and approach a court under the dispute। जैसा कि सर arbitration में होते हो तो litigation नहीं शुरू कर सकते, वैसे conciliation में होते हो तो litigation या arbitration कुछ भी नहीं शुरू कर सकते। सर एक बहुत क्लोजली रिलेटेड वर्ड आता है मीडिएशन। मीडिएशन कहाँ पे लिखा हुआ है सर? मीडिएशन लिखा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। मीडिएशन की बात करते हैं सर, जहाँ पे दो पार्टीज के लिए एक मीडिएटर होता है, वो मीडिएट करता है एक दूसरे की बात। सर मीडिएटर और कंसिलिएशन दोनों एक तरह एक जैसे लगते हैं, तो पर दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर मीडिएटर और मीडिएशन और कंसिलिएशन में? सर मीडिएटर में रोल प्लेड किसका? मीडिएटर का और कंसिलिएटर का। मीडिएटर प्लेस अ फैसिलिटेटिव रोल एंड अटेम्प्ट्स टू गाइड पार्टीज टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन। आप कोशिश करते हो कि सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन सर यहाँ पे कंसिलिएटर प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है। वो सर आपको सजेशंस देता भी है। सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन शुड कम फ्रॉम द पार्टीज देमसेल्फ। कंसिलिएटर कैन आल्सो अलोंग विद द पार्टीज सजेस्ट सम सॉल्यूशन। आउटकम इज एन agreement between the parties। Outcome is a settlement agreement। सर क्या enforceable है? Agreement reached by the parties is contract enforceable by court। Settlement agreement is like an arbitral award and is executable as of a degree of civil code। मतलब सर दोनों ही enforceable है। Governing section क्या है सर? यहाँ पे section 89 of code of civil procedure है। यहाँ पे सर ये एक्ट के पार्ट 3 की बात कर रहा है। कॉन्फिडेंशियलिटी सर ये ट्रस्ट के बेसिस पे कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन यहाँ पे लॉ के बेसिस पे कॉन्फिडेंशियल है। ब्रीच होगा तो एंटायर प्रोसेस को प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट यूजुअल प्रोसेस adapted for breach of contract follow करो, लेकिन this act provides mechanism for enforcing arbitral tribunal and recourse in instance of award is not followed। सर यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है कि अगर आपका कंसिलिएशन नहीं होता है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सलीम एडवोकेट बार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हेल्ड दैट कंसिलिएशन इज अ बिगर कॉन्सेप्ट देन मीडिएशन। सर ये वही केस है जहाँ पे उन्होंने बोला था सारे केसेस को ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म पे भेजो। यहाँ पे सर कंसिलिएशन इज अ बिगर कॉन्सेप्ट देन मीडिएशन। सर सेटलमेंट अग्रीमेंट लास्ट पॉइंट।
सर सेटलमेंट अग्रीमेंट क्या होता है? जब आपका कंसिलिएशन होता है ना, तो कंसिलिएशन के बाद आप सेटलमेंट अग्रीमेंट पे अराइव करते हो। इनिशियल प्रोसेस क्या होता है सर? अटेम्प्ट ऑफ कंसिलिएशन इज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड अराइव एट अ सेटलमेंट. Settlement could be based on suggestions by the conciliator and parties. When it appears to the conciliator that settlement is possible, he should identify possible terms of settlement and submit them to the parties for observation and suggestion. The parties may also make suggestion and consent and एज टू कंटेंट्स ऑफ द अग्रीमेंट. सर मतलब क्या, आपको पूरा कंसिलेटर हेल्प कर रहा है एक सेटलमेंट अराइव करने पे. अगर आर्बिट्रेटर को कोई भी पॉसिबल सोल्यूशन दिखता है तो वो लिख करके आपको दे देगा. आप उस पर जो भी आपकी सजेशंस दोगे और आप एक अग्रीमेंट में एंटर करोगे. इफ पार्टीज रीच टू अ सेटलमेंट देन इट विल बी रिटन डाउन एज अग्रीमेंट, सेटलमेंट अग्रीमेंट. Conciliator is required to authenticate the agreement without which it has no legal sanctity. Mysore Cements versus Swedla बर्माक लिमिटेड. सर ये क्या बोलता है? कंसिलिएशन अगर आप सेटलमेंट अग्रीमेंट को आपका कंसिलेटर ऑथेंटिकेट करके नहीं देता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. एनफोर्समेंट सर, इट इज सेम एज आर्बिट्रल अवार्ड, इट इज फाइनल एंड बाइंडिंग एंड इट कैन बी चैलेंज्ड बिफोर अ कोर्ट. सर कॉन्फिडेंशियलिटी हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड. स्ट्रिंजेंट कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोविजन है सर. बोथ कंसिलेटर एंड पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू कीप ऑल द मैटर रिलेटिंग टू प्रोविजन एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल unless where disclosure is necessary for implementation and enforcement of the settlement agreement. मतलब जब तक आपको वो जो आपने अवार्ड दिया है, आपने जो कंसिलिएशन एग्रीमेंट, आपने जो सेटलमेंट अग्रीमेंट किया है, उसके इन्फोर्समेंट के लिए जब तक आपको डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है ना, तब तक आप उसको कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रखोगे. दूसरा सर, कंसिलेटर कैन नॉट एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर और रिप्रेजेंटेटिव. मतलब क्या सर? मतलब सर सुनो, अगर ए और बी के बीच में सी जो है वो कंसिलेटर का काम कर रहा है. अब सर कंसिलेटर बन करके उसने दोनों को एक सेटलमेंट अग्रीमेंट पे ला दिया. लेकिन सर अब बी क्या कर रहा है? बी जाकर के केस करना चाहते हैं, आर्बिट्रेशन में लेके जाना चाहते हैं ए को. तो सर आर्बिट्रेशन में ए को लेके जा रहे हैं ना, तो सी जो है यहाँ पे आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता क्योंकि ही इज वेरी बायस्ड एंड हैज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हिच ही शुड नॉट हैव. कंसिलेटर कैन नॉट एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पार्टी इन आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट्स दैट वर सब्जेक्ट टू ये. और सर जो भी आपको एविडेंस मिला है ड्यूरिंग दी कंसिलिएशन, यू विल नॉट यूज इट एज एन एविडेंस ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन. बीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी वुड विटिलेट द आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स दे आर अटेम्प्टेड टू बी यूटिलाइज्ड. अगर आप अपने कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन कंसिलिएशन के डिस्क्लोज करते हो आर्बिट्रेशन में, तो सर वो आर्बिट्रेशन का जो पूरा प्रोसीडिंग्स है वही रद्द हो जाएगा, वो नहीं कंटिन्यू होगा बिकॉज आपने अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन यूज किया है. सर अ वेरी 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 इजी चैप्टर, टुक लॉन्गर देन नॉर्मल टू रिवाइज, बट इट इज फाइन. यू कैन एब्सोल्युटली यूज इट ऑन द लास्ट डे बिफोर योर एग्जाम. Thanks a lot for reading. Thanks a lot for listening. Have a good day. See you.